with the balance sheet extract, finish it off. We did 3-4 extracts in the last lecture. Okay, let's continue from there. Want you all to take some number. Some number 5. Sun Company Limited. Keep the solution in front of you. Keep the question in front of you. Question number 5. Fifth question, Sun Company Limited. With an authorized capital of 20 lakhs divided into 2 lakh shares of 100 each. Actually, it was 2 lakh shares of 10 each. 20,000 shares of 100 each. Authorized was 20,000 shares of 100 each. Issued 10,000 equity shares of 100 each, payable as 30 on application, 30 on allotment, 20 on first call and balance on final call. It received applications for 10,000 shares. PU was allotted 100 shares, did not pay the final call money, and his shares were forfeited. सर हाँ, सर इससे पहले कौन सा सम करवाया? ये पहला ही सम. And his shares were forfeited. Forfeited shares were reissued at 90 per share. ठीक है? Now, we are going to do the extract part. So draw the balance sheet extract of the same sum. Only a small extract, 3 to 4 lines. Give the heading as extract. Liabilities and assets. Fifth sum, Sun Company Limited. Now, let's begin. In the extract part, सबसे पहला question में पढ़ो कौन सा items. Looking at the journal, you have to identify which items will appear in the balance sheet extract. Okay. Looking at the question, think and tell me which items will go in the balance sheet. Equity share capital, bank. Capital जाएगा, bank जाएगा definitely. Capital reserve. Capital reserve जाएगा. Can you all see that capital reserve? Capital reserve will also appear in the balance sheet. Acha, why capital reserve will appear in the balance sheet? What is capital reserve for the company? Accumulated profits. Accumulated profit है, lump sum आया हुआ capital profit है. Okay. और क्या जाएगा? Think and tell me, will call in arrear appear in this problem in the balance sheet? Call in arrear दिखेगा कि नहीं? No. Why? सर forfeit करके issue कर दिया. Set off हो रहा है, nullify हो रहा है. जब जब आप फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल अलॉटमेंट की एंट्री करते हो तब आप कॉल इन अरियर डेबिट करते हो, और जब आप फोरफीट करते हो तब आप कॉल इन अरियर को क्रेडिट करके नलिफाई कर देते हो. तो कॉल इन अरियर जीरो हो चुका है. अगर आपको लगता है कि आएगा, आपको मैंने टेक्निक बताया हुआ है. व्हाट आर कॉल इन अरियर फॉर द बिजनेस? दे आर एसेट्स एंड ऑल एसेट्स हैव गॉट डेबिट बैलेंस. सो डू डेबिट माइनस क्रेडिट एंड चेक. इफ यू गेट सम बैलेंस, दैट मींस दे विल अपीयर ऑब्वियसली. ओके. So call in arrear in this situation will automatically become zero. Debit minus credit करोगे तो zero हो जाएगा, कुछ appear नहीं होगा balance sheet में.
गॉट इट? कॉल इन अरियर एक सम हमने लास्ट लेक्चर में किया था, वहां पे अपियर हुआ था, तो कौन से सिचुएशन में कॉल इन अरियर अपियर होगा? फोर फीचर नहीं और होता, फीचर नहीं होएगा। कोर फीचर नहीं होगा तब अपियर होगा। कॉमन सेंस है ना, क्योंकि अगर आपने फोरफीट कर दिया है शेयर्स तो आपने कॉल इन अरियर को नलिफाई कर दिया है क्रेडिट देके, तो इट वोंट अपियर इन द बैलेंस शीट। अगर आपने फोरफीट नहीं किया है तो कॉल इन अरियर अभी भी है, डेबिट साइड दिख रहा है, तो इट विल अपियर इन द बैलेंस शीट एज अ डिडक्शन फ्रॉम शेयर कैपिटल। अच्छा, सेकेंड थिंग, तो इस सम में तो कॉल इन अरियर अपियर नहीं होगा, ये बात समझ में आ रही है सबको? द सेकेंड थिंग, what about share forfeiture? Will share forfeiture account appear in the balance sheet? Will share forfeiture appear in the balance नो sheet? सर। No. Why? वो Set off. कैपिटल रिजर्व में जा रहा है, वो ट्रांसफर हो रहा हाँ, वो भी ट्रांसफर हो रहा है। शेयर फोरफीचर में जितना पैसा था क्रेडिट माइनस डेबिट करके वी हैव ट्रांसफर्ड इट टू कैपिटल रिजर्व. Again, if you have any two thought or doubt about that, you can simply check credit minus debit करके. Forfeiture is your temporary profits and profits have got credit balance. You can simply check credit minus debit करके कुछ बैलेंस है क्या. Got it? तो forfeiture में भी कोई बैलेंस नहीं है, तो मतलब forfeiture भी जीरो हो चुका है. What about application, allotment, first call, second call? Will they appear in the balance sheet? Application, allotment, first call, second call? है. No. वो भी नहीं दिखेंगे because तो वैसे ही नलिफाई हो जाते हैं हर एक कॉल के बाद. तो दिखेगा क्या? I think you will show capital, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व में बैलेंस आएगा क्योंकि खाली क्रेडिट में है, डेबिट कुछ नहीं है. तो शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, एंड आई थिंक थर्ड अमाउंट इज बैंक. और कुछ दिख रहा है सम में? एनीथिंग एल्स दैट विल अपीयर फ्रॉम द प्रॉब्लम इन द बैलेंस शीट? एप्लीकेशन नहीं दिखेगा, अलॉटमेंट अकाउंट नहीं दिखेगा, फर्स्ट कॉल नहीं दिखेगा, सेकंड कॉल नहीं दिखेगा, कॉल इन अरियर नहीं दिखेगा, नलिफाई हो चुका है, फोर फीचर नहीं दिखेगा, तो सब खत्म हो गए, बचे खाली 3 अकाउंट्स. So let's start with share capital. How to calculate the amount? You remember that technique. If it's a liability, you do credit minus debit. If it's an asset, you do debit minus credit. The share capital ka credit minus debit. Please check how much it comes to. 10 lakh. In lakhs. मिला? 10 लाख रुपीस आना चाहिए. शेयर कैपिटल का डेबिट माइनस क्रेडिट शुड बी 10 लाख रुपीस. ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच. ये नहीं किया तो भी चलेगा. ओके, जस्ट एन एडिशनल इंफॉर्मेशन. 10,000 equity shares of 100 each, that is 10 lakh rupees. Got that? What about the other stuff? Capital reserve. What is capital reserve for the company? It's a profit reserve. All reserves are what? Internal liabilities Liability. belong to the owner. बराबर है. जैसे कैपिटल के प्रॉफिट ऐड कर देते हो ना तुम सोल प्रोप्राइटर में, यू ऐड द प्रॉफिट टू द कैपिटल. कंपनीज अपने प्रॉफिट अलग से दिखाती है, ऐड नहीं करती है कैपिटल में, वो अलग से दिखाती है रिजर्व्स के हेड में. जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी या शेयर्स प्रीमियम, शेयर फॉरफीचर, ये सब कंपनी के प्रॉफिट्स हैं. ये सब सेपरेट अकाउंट में दिखेंगे. हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिजर्व? It's a profit, so it's a liability. So how will you calculate? It is simply credit minus debit. So you check in capital reserve in the journal entry. Do you have any credit? 7,000. The last entry, yes. 7,000. Yes, sir. डेबिट में कुछ नहीं मिलेगा आपको कैपिटल रिजर्व, क्योंकि कैपिटल रिजर्व हम कभी डेबिट तो करते ही नहीं है एंट्रीज में. टेक्निक समझ में आ रही है? हाउ टू मेक द बैलेंस शीट? वेरी सिंपल इट इज. इट इज अ लायबिलिटी, डू क्रेडिट माइनस डेबिट. इफ इट इज एन एसेट, डू डेबिट माइनस क्रेडिट. व्हाट अबाउट द थर्ड आइटम? Bank. बैंक इज व्हाट? इट इज एन एसेट. बिजनेस का एसेट है, पैसा आया. हाउ विल यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ बैंक? डेबिट माइनस क्रेडिट. चेक. डेबिट 10 lakh माइनस क्रेडिट. 7,000. Automatically you will have 10 lakh 7,000 rupees. That's your bank balance and your balance sheet will tally. $10 lakh 7,000. ठीक है? Simple as that. Got it?
3 items from the sum. Okay. Want you all to take sum number 20 of the class sheet. Sum number 20 कहीं तो आगे मिलेगा आपको class sheet का sum number 20 Boston Limited. Draw up an extract for sum number 20. ट्वेंटियथ सम क्लास शीट का सर जब सिर्फ फोर फीचर रहता है और रीइश्यू नहीं होता है तभी तो शेयर फोर फीचर आएगा ना। एग्जैक्टली परफेक्ट। अगर 4 फीचर हो गया और रीइश्यू नहीं हुआ तो 4 फीचर अकाउंट दिखेगा। परफेक्ट। जैसे कॉल इन अरियर आप कैपिटल से माइनस करते हो वैसे शेयर 4 फीचर यू विल एड इट टू कैपिटल एंड शो इट। वो भी करेंगे हम लोग एग्जाम्पल, वो भी आएगा। परफेक्ट बोला एकदम। सी सम नंबर 20 पेज 113 sum number 20. Look at the journal. The solution is there in front of you. Look at the journal. Look at the journal, all of you. Try to identify what amounts will come in the balance, what accounts will go in the balance sheet. One definitely share capital. Share capital तो जाएगा ही, बैंक भी जाएगा ही, definitely जाएगा। और क्या जाएगा सोचो। Looking at the problem. Capital reserve. Capital reserve भी जाएगा। Problem में capital reserve है, right? And there's one more thing. You can check it again. Share premium. Absolutely right. Why share premium? What is share premium? What is share premium for the company? Liability. Profit. Profit. Internal liability belongs to the owner. Internal liability, not external one. Profits of the company belongs to the owner. Internal liability reserve ही है। और कुछ दिखेगा क्या? Share premium हो गया, capital reserve हो गया, बैंक हो गया, share capital हो गया. Anything else? Call in arrears. If you think call in arrear will appear in the sum, so just look at the sum and check, have you forfeited all the shares? क्वेश्चन पढ़ के देखो, पता चलेगा। Have you forfeited the shares? क्या आपने forfeit किया हुआ है shares? हाँ सर। Yes. तो forfeiture के वक्त क्या होता है? तो forfeiture में call in arrear क्या हो जाता है? nullify हो जाता है क्रेडिट होके। और अगर आपको तभी भी समझ में नहीं आ रहा है, सपोज तसल्ली नहीं हो रही है, तो आपके पास शॉर्टकट है। जस्ट चेक कॉल इन अरियर का डेबिट माइनस क्रेडिट। जस्ट चेक कॉल इन अरियर का डेबिट माइनस क्रेडिट। कुछ मिल रहा है क्या? चेक कॉल इन अरियर का डेबिट माइनस क्रेडिट, इट विल ऑटोमेटिकली बिकम जीरो, नील। कॉल इन अरियर का डेबिट माइनस क्रेडिट विल बिकम जीरो। तो कॉल इन अरियर अपीयर नहीं होने वाला है, पक्का समझ में आया? Will your share forfeiture account appear in the balance sheet? Share forfeiture account appear होगा बैलेंस शीट में? वो भी नहीं होगा क्योंकि आपने सबके सब शेयर्स रीइश्यू कर दिए ना, तो forfeiture चला गया बैलेंस शीट में। अगर फिर भी नहीं जम रहा है, अपना हमेशा यूनिवर्सल शॉर्टकट रेडी है अपना। क्या करना है आपको? क्रेडिट माइनस डेबिट करो। forfeiture एक प्रॉफिट होता है, टेम्पररी रिजर्व होता है। तो forfeiture का क्रेडिट माइनस डेबिट करो, जीरो मिलेगा, जीरो जीरो जीरो। शेयर 4 फीचर का क्रेडिट माइनस डेबिट करके देखो, जीरो हो जाएगा, नलिफाई हो चुका है। विल यू हैव एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, सेकंड कॉल मनी इन द बैलेंस शीट? नो, वो तो ऑटोमेटिकली। उसमें भी अगर कोई डाउट है तो एनी टाइम शॉर्टकट इज रेडी। डेबिट माइनस क्रेडिट करके देखो, सबका जीरो हो जाएगा। तो बचा क्या आपको? बचा खाली शेयर कैपिटल, बैंक, share premium and capital reserve. तो start करो। share capital, credit minus debit, tell me the amount you should be having.
8 लाख रुपीज आना चाहिए. चेक. शेयर कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट शुड बी 8 लाख रुपीज. प्लीज चेक. Add up all the credits of share capital, you should get 8 lakhs. Please check. Calculate. मिल रहा है? Hello. Yes. 8 lakh rupees should be your capital. Okay. अभी ये ओवर सब्सक्रिप्शन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओवर सब्सक्रिप्शन में या तो आप प्रो रेटा करते हो या तो रिफंड करते हो. तो कंपनी के पास रिस्ट्रिक्शन होता है. अगर उसने 80,000 शेयर इश्यू किए तो 80,000 का ही मैक्सिमम पैसा ले सकती है. और अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ 70,000 शेयर हुआ तो 70,000 का लेगी. तो 7 लाख रुपया होगा कैपिटल यहाँ पे ऑटोमेटिकली. अंडर सब्सक्रिप्शन में इट वुड हैव बीन 7 लाख, बट ओवर सब्सक्रिप्शन में 9 लाख 10 लाख नहीं होगा, 8 लाख ही होगा. मैक्सिमम शेयर कैपिटल कैन बी 8 लाख, नॉट मोर देन दैट. गॉट इट? तो मैक्सिमम शेयर कैपिटल आपका 80,000 शेयर इंटू 10, दैट विल बी 8 लाख रुपीज. इधर हियर यू कैन राइट 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच. ये तो हो गया कैपिटल. दूसरा क्या बताया हमने, क्या दिखेगा? कैपिटल रिजर्व दिखेगा. Capital reserve is a reserve, internal liability, credit balance. So do credit minus debit. करो credit minus debit capital reserve का. 3700. I think last entry में आपको credit दिखेगी capital reserve की 3700. और कुछ है ही नहीं debit में वहां पे, वो भी कहानी खत्म. फिर आता है तीसरा अकाउंट, that is share premium account. Share premium account. शेयर प्रीमियम का क्या है? रिजर्व है, इंटरनल लायबिलिटी है, तो क्रेडिट माइनस डेबिट क्रेडिट बैलेंस होगा. तो आई थिंक थर्ड एंट्री में शायद आपने प्रीमियम क्रेडिट किया होगा और फिर कहीं 4 फीचर एंट्री में डेबिट किया होगा. सर्च फॉर द प्रीमियम, क्रेडिट माइनस डेबिट सर्च करो, प्रीमियम का क्रेडिट माइनस डेबिट करो. 2 एंट्रीज में आई थिंक प्रीमियम दिखेगा आपको, थर्ड एंट्री में और कहीं सेकेंड लास्ट एंट्री में. थर्ड लास्ट. 3,18,000. हाउ मच? 3 लाख 18. 3 लाख 18, इतना बड़ा? 3,18,000. So 3,20,000 minus 2,000. 3,20,000 माइनस 2,000. हाँ 4 रुपया था बराबर. 3,18,000. 3,18,000 should be your premium. Can you all see that? Credit minus debit, इतना प्रीमियम इकट्ठा किया. और चौथा अमाउंट था अपना बैंक. How will you calculate bank? It's an asset, so debit minus credit. Simply do debit minus credit of bank. Add up all the debits, subtract all the credits of bank. From the journal entry, add up the debits, subtract the credits. बाकी सब डेबिट होगा. आपको आई थिंक सेकेंड एंट्री में क्रेडिट मिलेगा बैंक का, रिफंड किया इसके लिए. बाकी सब डेबिट्स ऐड करो, सेकेंड एंट्री वाला क्रेडिट माइनस करो बैंक का. आपको ये टोटल मिलना चाहिए 11,21,700. जस्ट चेक. बैंक का डेबिट माइनस क्रेडिट ऑटोमेटिकली मिलना चाहिए 11,21,700. 11,21,700 should be your debit in bank. Please check. Check. 11,21,700 should be the debit in bank. Debit minus credit. मिला? Hello. All of you got that? Check debit minus credit of bank, calculate. Getting the answer 11,21,700. बोलो. Yes, sir. मिला? Yes, sir. चेक करना, ऑटोमेटिकली छाप मत देना, पता भी नहीं चलेगा राइट है रॉन्ग है.
मिल रहा है? चेक इट. सो इस इश्यू में क्या हुआ, लेट्स थोड़ा एनालाइज द इश्यू. इस इश्यू में कंपनी को उम्मीद थी कि भैया शेयर कैपिटल आएगा 8 लाख, क्योंकि 80,000 शेयर इश्यू किए थे, और 4 रुपया प्रीमियम, मतलब 3,20,000 प्रीमियम का एक्सपेक्टेड था. कंपनी को तो एक्सपेक्टेड था कितना, 11,20,000. 11,20,000 एक्सपेक्टेड था, 8 लाख ऑफ कैपिटल एंड 3,20,000 ऑफ प्रीमियम. लेकिन क्या हुआ, बीच में कोई डिफॉल्ट किया, उसका शेयर फोरफिट किया, री इश्यू किया, उसपे कंपनी को थोड़ा एक्स्ट्रा माल मिल गया, एक्स्ट्रा पैसा मिल गया. कितना एक्स्ट्रा पैसा मिल गया वहां पे, उसको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिला है देखो यहाँ पे. 3,700 फोर फीचर का है, लेकिन 2,000 प्रीमियम का कम हो गया वहां पे, 1,700. उसको 11,20,000 एक्सपेक्टेड था, लेकिन 1,700 एक्स्ट्रा मिल गया. ये 1,700 एक्स्ट्रा कहाँ से मिला होगा, बता सकते हो? forfeiture. जो फोर फीचर का हड़पा हुआ पैसा है ना, जो फोर फीचर का एक्स्ट्रा हड़पा हुआ पैसा, वो हड़पा हुआ पैसे में री इश्यू का लॉस एडजस्ट करके उसको 1,700 बच गया. दैट इज द मीनिंग. ओके, तो उसको तो एक्सपेक्टेड था 11,20,000, लेकिन फोर फीचर किया, इसके लिए उसको ज्यादा पैसा मिल गया. दैट इज द. तो वो सब एनालिसिस पार्ट है, वो इन द हायर स्टैंडर्ड जो एज इट इज गोइंग टू लर्न. ओके, तो ये बैलेंस शीट का तरीका समझ रहा है, हाउ टू मेक द बैलेंस शीट. आइडेंटिफाई द आइटम्स. अगर कोई शक हो रहा है कि कॉल इन अरियर आएगा या शेयर फोर फीचर आएगा, आपके पास शॉर्टकट रेडी है, सिंपली डू डेबिट माइनस क्रेडिट या क्रेडिट माइनस डेबिट. आपको लॉजिकली जानना है तो व्हाट इज द थिंग, वेन एवर यू फोरफिट द शेयर्स, आपको प्रॉब्लम में देखना है. अब अगर आपने सबके सब शेयर्स फोरफिट कर दिए हैं, इफ यू हैव कैंसल्ड ऑल द शेयर्स, देन यू हैव क्रेडिटेड द कॉल इन अरियर. आपने कॉल इन अरियर को नलिफाई कर दिया है. याद है ना, फोर फीचर एंट्री, शेयर कैपिटल टू कॉल इन अरियर टू शेयर फोर फीचर. अगर आपने सबके सब शेयर फोरफिट कर दिया ना, तो कॉल इन अरियर नलिफाई हो चुका है, तो कॉल इन अरियर नहीं दिखेगा बैलेंस शीट. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. When you forfeit all the shares, your call in arrear get nullified, so call in arrear will not appear in the balance sheet. The second thing about forfeiture, share forfeiture कब nil हो जाएगा, when your share forfeiture will become nil when you reissue all the shares. जब आप सबका सब शेयर रीइश्यू करते हो, तब आप बैलेंस इन शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर कर देते हो, क्रेडिट माइनस डेबिट करके, बराबर है. लेकिन जब आप सब शेयर्स रीइश्यू नहीं करते, जब आप सब शेयर्स रीइश्यू नहीं करते, तब याद है हम लोग इंडिविजुअल रीइश्यू देखते हैं, तो सबका प्रॉफिट माइनस सबका लॉस ट्रांसफर नहीं होता है कैपिटल रिजर्व में, खाली पार्ट शेयर्स का प्रॉफिट माइनस पार्ट शेयर का लॉस ट्रांसफर होता है. So that time share forfeiture will appear in the balance sheet. Okay, that is a logical way to think. Otherwise आपके पास mechanical way तो है ही, debit minus credit या credit minus debit. Okay. Now I want you all to try 21st sum. 21st sum. I want you all to try make the extract 21st sum, Moon Company Limited. 21st sum. पहले I want you all to try and find out what all items will go in the balance sheet. Use your brains, and once you identify the items, get the amount and tally the extract. Come on. 21st sum, balance sheet extract. Keep the journal in front of you.
सर तो बाद में जो बैलेंस शीट है उसमें एसेट साइड सिर्फ बैंक ही आएगा ना, उसका लॉक हो जाता है। उसके अलावा समटाइम्स यू मे हैव डिस्काउंट ऑन इशू, अभी वो बैन हो चुका है, वो हम लोग रिवीजन में करेंगे, वो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, इसके लिए आता है। और एक सन्ड्री एसेट आ सकता है जब आप सीओटीसी पे शेयर इश्यू करते हो, जब आप एसेट टेक ओवर करके शेयर देते हो तो इधर बैंक और कैपिटल के जगह एसेट में सन्ड्री एसेट और कैपिटल, और कुछ नहीं। मोस्टली अभी तक के सब सिनारियों में आपको बैंक ही दिखेगा। सर उसमें रेशियो भी प्रीमियम पे हो रहा है। एक सेकंड, प्रीमियम वाला है 2,70,000 ही आएगा। 300 into 3,000 ना, हाँ बराबर, 2,70,000 बराबर, 9 plus 2 1170, 1185, bank automatically will be 1185. चेक कर लो। These should be the amounts, all of you should get that. किसी को नहीं मिल रहा अमाउंट तो पूछ लो। लायबिलिटी है तो क्रेडिट माइनस डेबिट, एसेट है तो डेबिट माइनस क्रेडिट, सिंपल फंडा। I'll just come. मिल रहा है सबको अमाउंट्स? हेलो, all of you, check.
and the standard textbook. Come to standard textbook. Page number 342, sum number 6. Standard textbook, page number 342, sum number 6. Make the extract. सर बैलेंस शीट Yes. के ऊपर नहीं लिखने का ना कि इन द बुक्स ऑफ एक बार लिखा हुआ है ना जर्नल में, तो वापस जरूरत नहीं। जर्नल बनाते हो क्या रिटर्न ना। पेज नंबर 342, सम नंबर 6। सोल्यूशन होगा आपके पास, शुरुआत में हमने किया था कहीं पे। प्लीज गो थ्रू द सोल्यूशन, keep the journal in front of you and make the extract. Page 342, sum number 6, standard textbook. Sir, forfeiture re-add in capital. Add in capital, yes. Call in arrear, deduct from capital, share forfeiture, add to capital. ऐड नहीं किया गलती से, अगर अलग अलग दिखा दिया तो भी टेंशन वाली बात नहीं, नो प्रॉब्लम, ओके, बट शो इट इन द लायबिलिटी एज अ रिजर्व. सर शेयर फीचर तो वापस रिपीट करो ना। शेयर फॉर फीचर यू कैन ऐड इट टू कैपिटल, जैसे कॉल इन एरिया आपने कैपिटल में से माइनस करके दिखाया था ना, वैसे शेयर फॉर फीचर कैपिटल में ऐड होता है, क्योंकि वो टेम्पररी रिजर्व, अब तक परमानेंट नहीं बना है. तो अगर याद रहा तो ये करना, नहीं तो अलग अलग दिखा दोगे दोनों तो भी वांदा नहीं, इट्स नॉट रॉन्ग, चलेगा, वैसे भी चलेगा, बट दिखाना जरूर इन द लायबिलिटी, शेयर फॉर फीचर एज अ प्रॉफिट. यू कैन ऐड इट टू कैपिटल और शो इट सेपरेटली ऑल्सो. ऐड किया तो बेटर है. सर 98,000 कैसे आया? क्रेडिट माइनस डेबिट करो कैपिटल का, कैपिटल का क्रेडिट माइनस डेबिट करो, मिलना चाहिए तुमको 98,000. चेक. सॉरी.
सर लेकिन 10,000 शेयर ऑफ 10 each, so 1 लाख आना चाहिए ना. Wait, I'll tell you. First check credit minus debit. हाँ You सर, get 98. 98 ही उसमें आएगा सर, 98 आएगा। माइनस 2000 हो रहा I explain. पहले बना लो, सर बट बताता हूँ. क्वेश्चन में दिया है ना कि 10,000 शेयर्स है। ये 2000 कैंसिल भी तो किया है, मतलब 200 फॉरफिट हो गया ना. That's why I told you. इसका मेथड पहले क्रेडिट माइनस डेबिट से बना लो, फिर मैं समझाता हूँ आपको. जस्ट मेक इट फर्स्ट. फिर शेयर प्रीमियम में सबने भरा है 10,000 to 20,000. पहले बना लो. These items should go in your balance sheet. These items should go in your balance sheet. शेयर कैपिटल आएगा, शेयर फोर फीचर आएगा, प्रीमियम आएगा और बैंक आएगा. कॉल इन अरियर आएगा कि नहीं? नो, नलिफाई हो चुका है. अच्छा, एक चीज अलग था सब में, फोर फीचर. क्यों फोर फीचर आया? पहली चीज रेशियो नहीं किया, फोर फीचर पे खत्म किया, इसके लिए फोर फीचर आया. फोर फीचर को कैसे ट्रीट करने का सब में याद रखना, कैपिटल में ऐड कर देना. फोर फीचर विल बी एडेड टू कैपिटल एंड कॉल इन अरियर है तो डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल, क्योंकि फोर फीचर परमानेंट रिजर्व नहीं है, टेम्पररी रिजर्व है. तो कैपिटल में ऐड करके दिखाते हैं प्रेजेंटेशन के वक्त. अगर याद नहीं रहा, अलग से दिखाया, वांदा नहीं, तो भी चलेगा. बट शो इट इन द लायबिलिटी एज योर प्रॉफिट. इंटरनल रिजर्व है वो तुम्हारा, ठीक है, इंटरनल लायबिलिटी है. अभी अमाउंट कैसे मिला देख लो. सबका अमाउंट क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट करके तो आ ही जाएगा. अभी लॉजिकली सोचने का, लॉजिकली कैसे सोचोगे, सोचो. देखो 10,000 शेयर्स का इश्यू था. हेलो, 10,000 शेयर्स में से 200 शेयर्स कैंसिल किया हुआ है कंपनी ने. तो अब जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, तब आपकी किटी में कितने शेयर्स है, कंपनी के पास कितने शेयर्स है? 10,000 या 9,800? 9,800. 9,800. That's why the capital is showing at 9,800. So 9,800 shares. ये क्या है? 9,800 equity shares of 10 each. ये 9,800 जो शरीफ लोग है ना, शरीफ लोग जिन्होंने पूरा पैसा दिया हुआ है, उनके शेयर कैपिटल दिख रहे हैं यहाँ. शरीफ लोग 9,800 शेयर होल्डर, नॉन डिफॉल्टर्स, इन्होंने पूरा पैसा भरा है, उनका कैपिटल दिख रहा है. ठीक है. उसके बाद मैंने फोर फीचर में ऐड किया 1,200 रुपया. ये कौन सा है? ये फोर फीचर का 1,200 कहां से टपका? जो हड़पा है, किसका हड़पा है? 200 शेयर्स का. 200 शेयर्स पे भाई ने क्या भरा था? पढ़ो. 200 शेयर्स पे भाई ने क्या भरा था? ओनली एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कैन यू ऑल सी दैट? अभी अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो फोर फीचर में कौन सा वैल्यू आता है? ओनली टुवर्ड्स कैपिटल. तो 3 ऑन एप्लीकेशन एंड 3 ऑन अलॉटमेंट. 6 रुपया भरा है उसने, जो हड़प लिया हमने. वैसे 8 भरा है, प्रीमियम भी भरा है, लेकिन 6 तो भरा ही है कैपिटल का. तो 6 रुपया फोर फीचर हड़पा हुआ पैसा 1,200. और शेयर प्रीमियम में 20,000 क्यों लिखा मैंने? बिकॉज शेयर प्रीमियम तो सबने भरा है, इंक्लूडिंग दिस डिफॉल्टर. डिफॉल्टर ने भी 8 रुपया भरा है, उसमें से 2 रुपया प्रीमियम है, और बाकी शरीफ लोगों ने तो पूरा पैसा भरा ही है, पूरा प्रीमियम भरा है. तो हाउ मच प्रीमियम यू हैव रिसीव्ड टोटली? 20,000. इसलिए मालूम है वो फोर फीचर एंट्री का रूल, प्रीमियम वंस रिसीव्ड शुड नॉट बी डेबिटेड, नॉट रिसीव्ड शुड बी डेबिटेड. तो यहाँ पे सबने प्रीमियम भरा है, डिफॉल्टर ने भी प्रीमियम भरा है, इसलिए हम आप अगर ध्यान से देखोगे ना फोर फीचर एंट्री, तो फोर फीचर में प्रीमियम डेबिट नहीं हुआ होगा. दिख रहा है आपको? फोर फीचर एंट्री में वी हैव नॉट डेबिटेड द प्रीमियम. व्हाई वी हैव नॉट डेबिटेड? क्योंकि प्रीमियम 9,800 पे नहीं, पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स पे 2 रुपया रिसीव किया है आपने. वो पूरा पैसा बैंक में दिख रहा है. जेन्युइन प्रीमियम है, जेन्युइन पैसा है.
तो कुछ नलिफाई करने की जरूरत नहीं है वहां पे. दैट इज द मीनिंग. अंडरस्टूड नाउ? तो टेल मी गाइस, if you forfeit the shares, सुनो ध्यान से, if you forfeit the shares, will call in arrear account appear in the books? No. अगर आप forfeit कर देते हो तो call in arrear गायब हो जाएगा. Then if you reissue the shares, then will forfeiture account appear in the books? No. No. अगर आप reissue कर देते हो तो forfeiture गुल हो जाता है. तो ये हिंट होती है सम में. अगर आपने सबके सब शेयर forfeit कर दिए हैं तो शेयर फॉरफीचर सॉरी कॉल इन अरियर गायब हो जाता है, और सबके सब शेयर री इश्यू कर देते हो तो फॉरफीचर भी गायब हो जाता है. ठीक है. बट अगर बाय चांस सम कहीं बीच में खत्म हो रहा है, जैसे कि आपने फॉरफीट नहीं किया है तो कॉल इन अरियर दिखेगा, और अगर आपने री इश्यू नहीं किया है तो फॉरफीचर दिख जाएगा सम में. ओके, जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, री इश्यू नहीं किया है अभी तक, इसलिए फॉरफीचर अपीयर हो रहा है सम. स्टिल अगर आप ये चीज सपोज आपको याद ना रहे, आपके पास महामंत्र है एक्सट्रैक्ट का, डेबिट माइनस क्रेडिट, क्रेडिट माइनस डेबिट. जो आइटम पे शक जा रहा है कैलकुलेट कर लो, क्रेडिट माइनस डेबिट, डेबिट माइनस क्रेडिट डाल दो, अगर है तो अपने आप दिख जाएगा. और दूसरी बड़ी हिंट है, अगर आपने गलत चीजें डाली है तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी. योर एक्सट्रैक्ट विल नॉट टैली ओनली. 2-3 आइटम में टैली नहीं हो रहा है तो ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है, यही 4 आइटम घूम फिर के आता है एक्सट्रैक्ट. आर यू गेटिंग दैट? नेक्स्ट वन, I want you all to try the extract for sum number 7, 342 पेज, उधर ही है. सम नंबर 7 पेज 342. इधर भी 4 फीट हुआ है, फिर भी मैं पूरा 2 लाख लिख रहा हूं. क्यों, कोई बता सकता है? इधर भी शेयर 4 फीट हुआ है, बट आई एम स्टिल राइटिंग फुल 2 लाख. रेशियो भी तो हो गया है, वापस हो गए ना 100 शेयर ऐड कंपनी की किटी में. दैट इज द लॉजिक. तो मुझे ये सम में बताओ, कॉल इन अरियर दिखेगा, शेयर फॉर फीचर दिखेगा सम में? No. नो. तो खाली दिखेगा अपना कैपिटल रिजर्व. सर अगर सबका 4 फीचर किया है लेकिन इश्यू सिर्फ आधे लोगों का ही किया है, तो 4 फीचर दिखेगा. जरूर दिखेगा, जब तक सब रेशियो नहीं हो जाते तब तक दिखेगा 4 फीचर. वो भी एग्जाम्पल हम लोग करेंगे, प्रॉब्लम भी सॉल्व किया, एग्जाम्पल भी देखेंगे. छापना मत, खुद से कैलकुलेट करना अमाउंट, अदरवाइज इट इज सिंपली टाइम वेस्ट.
मिला? मिल रहा है अमाउंट? बताइए, एनी डाउट एनीवन? पेज नंबर 329 सम नंबर 11। पेज नंबर 329 सम नंबर 11 का सॉल्यूशन जर्नल वहीं पे है, बैलेंस शीट मत छापो, जर्नल है, जर्नल से एक्सट्रैक्ट बनाओ, खुद से बनाओ। 11th सम श्रद्धा लिमिटेड 329, ऊपर जाओ। 11th सम श्रद्धा लिमिटेड 329, जर्नल से देख के एक्सट्रैक्ट बनाओ, खुद से बनाओ। सॉल्व किया भी है, हाँ, आंसर भी होगा, नोटबुक में भी आंसर होगा तुम्हारे पास, सॉल्व किया हुआ है। और इसका सोल्यूशन में अलग कौन सा पेज नंबर है? 329। पहले तो क्वेश्चन पढ़ के बताओ मुझे, विल देयर बी एनी कॉल इन अरियर इन द सम? विल कॉल इन अरियर अपीयर इन द बैलेंस शीट? नो। व्हाई? 4 फीट 4 फीट हो गया है। अच्छा, विल शेयर फॉर फीचर अकाउंट अपीयर? यस। यस, व्हाई? रीइश्यू रीइश्यू नहीं किया है। विल कैपिटल रिजर्व अपीयर? यस। नो नो कैपिटल रिजर्व कैसा दिखेगा? नो कैपिटल रिजर्व नहीं दिखेगा, ओके, क्योंकि ट्रांसफर किया ही नहीं है अभी तक। सम में देखो ना, जर्नल में दिखेगा ही नहीं कैपिटल रिजर्व। अच्छा, प्रीमियम है क्या सम में? प्रीमियम दिखेगा, प्रीमियम? यस। यस। क्या दिखेगा? बेसिकली शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर, प्रीमियम एंड बैंक, 4 आइटम्स। शेयर कैपिटल, शेयर फॉर फीचर याद आए तो ऐड कर देना कैपिटल में, वरना अलग से दिखाओगे तो भी बहाना नहीं। भी ढूंढने का कैसा? तो मैक्सिमम शेयर्स 1 लाख है, ओवर सब्सक्रिप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 4 फीट क्या है तो 1 लाख में से 200 काटो तो 9 लाख, सॉरी 99,800 शेयर्स ऑफ 10 each, 9,98,000। शेयर फॉर फ्यूचर में हड़पा हुआ पैसा 200 शेयर्स पे क्या भरा था उसने? 3 और 3 6 1200। So 9,99,200 एंड शेयर प्रीमियम तो आई थिंक सबने भरा है, कि भाई ने भी भरा है, डिफॉल्टर ने भी भरा है, तो 1 लाख पे 2 रुपया, 2 लाख रुपया। और बैंक में तो टोटल। सर ये सब होने के बाद अब एक मिनट क्वेश्चन 6 दिखाओ ना वापस। क्या क्या क्या? ये सब होने के बाद अब वापस क्वेश्चन 6 दिखाओ ना, वो पेज 342 वाला। क्वेश्चन 7? क्वेश्चन 6 और 7 के पहले वाला। एक मिनट, क्वेश्चन 6, हाँ हाँ, वो ऊपर वाला किया है, सोल्यूशन देखना है, सेम था, इसके जैसा ही था। हाँ सर हो गया।
ये सम एग्जाम 6th जैसा ही था जो अभी किया 11th सम। चेक कर लो, सॉल्यूशन भी है उधर, टैली द आंसर। Tell me any of you have not got the amount, anyone? Please tell me. जम रहा है अभी एक्सट्रैक्ट। एक लास्ट सम ले लेते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का ही सम है। एक दो सम, सॉरी, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है और एक असाइनमेंट शीट है। वापस नीचे आ जाओ, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 पेज 341, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज 341, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1। तो ऐसा एक्सट्रैक्ट तो आने का कोई चांस है नहीं, खाली प्रेजेंटेशन के लिए दिया है। ये फुल फ्लेजेड बैलेंस शीट जब आप लर्न करोगे कंपनी अकाउंट्स में, जो सीए फाउंडेशन में है या फिर आपका हायर स्टैंडर्ड्स में आएगा, बैक बीएमएस में, उधर काम करेंगे। यस, कॉल्स इन एडवांस ये रहेगा तो ऐड होगा ना बाद में। कॉल्स इन एडवांस तो नलिफाई हो जाता है ना यार। बट अगर तेरा कॉल इन एडवांस खाली क्रेडिट करके छोड़ा हुआ है, मतलब सेकंड कॉल नहीं मांगा है, तो फिर दिखेगा कॉल इन एडवांस। कॉल इन एडवांस जस्ट लाइक योर कॉल इन अरियर, यू सबट्रैक्ट ना फ्रॉम द कैपिटल, तो कॉल इन एडवांस उधर ही लायबिलिटी में दिखा देना, ऐड करके ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके दिखाओ, अलग से दिखाओ, चलेगा, नो प्रॉब्लम, बट दिखाओ लायबिलिटी। कॉल इन एडवांस विल बी शोन इन द लायबिलिटी। अगर है क्रेडिट ही है, डेबिट हुआ ही नहीं है, तो कॉल इन एडवांस दिख जाएगा लायबिलिटी में। परफेक्ट। Why call in advance is a liability? You got it? एडवांस में आ गया, इट्स लाइक अ लोन। ओके, आपको एडजस्ट करना बाकी है, इंटरेस्ट या बेनिफिट देना बाकी है, तो कॉल इन एडवांस विल अपीयर। अगर आपने नलिफाई नहीं किया है, सेकंड कॉल में एडजस्ट नहीं किया है, फर्स्ट कॉल तक किया है या अलॉटमेंट तक किया एडवांस सम, तो फिर वहां पे दिख जाएगा कॉल इन एडवांस विल अपीयर इन द लायबिलिटी। ओके, बैलेंस शीट ऑफ सम नंबर 1, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पेज 341। अभी इसमें ये सब आपको होमवर्क दिया था, मैंने होमवर्क में किया है अपने, सोल्यूशन है। इसमें क्या दिया है? शो ऑथराइज्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन अरियर्स एंड शेयर प्रीमियम अमाउंट इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो कंपनी का बैलेंस शीट में सब तरह का कैपिटल पूछा हुआ है, ठीक है। तो कैसे चालू करने का? सबसे पहला ऑथराइज, तो गिव द हेडिंग एज शेयर कैपिटल, गिव द हेडिंग एज शेयर कैपिटल, उसमें लिखने का ऑथराइज। याद है ऑथराइज का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल? Maximum limit. अपर लिमिट। तो क्वेश्चन में पढ़ो, दिया रहेगा ऑथराइज्ड कैपिटल। कैन यू ऑल लुक एट द क्वेश्चन एंड टेल मी व्हाट इज द ऑथराइज्ड कैपिटल? 15 lakhs. 15 lakh डिवाइडेड इनटू 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10। तो ऐसा लिखने का, 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, that is 15 lakh। उसको डबल अंडरलाइन करके छोड़ देने का। डबल अंडरलाइन का मतलब वो टोटल का हिस्सा नहीं है, वो बैलेंस शीट का एक्चुअल अमाउंट नहीं है। बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल दिखता है अल्टीमेटली जो कैलकुलेशन में आता है? वो Issued capital. नहीं, फाइनल कैपिटल कौन सा होता है जो बैलेंस शीट में दिखता है? पेड अप, पेड अप दिखता है, पेड अप। ओके, ऑथराइज भी नहीं दिखता है, सब्सक्राइब्ड भी नहीं दिखता है, इश्यूड भी नहीं दिखता है, कॉल्ड अप भी नहीं, अल्टीमेटली पेड अप। बट जनरली हमारा इश्यूड ही पेड अप हो जाता है, इसके लिए वो इश्यूड और पेड अप सेम दिखता है, समझा? इश्यूड है, सबका सब पैसा आ गया तो सब पेड अप हो जाएगा।
ऑथराइज कैपिटल इज जस्ट द अपर लिमिट, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, उतना लिमिट तक आप कैपिटल रेज कर सकते हो। फिर पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो ऊपर, कंपनी issued 1 lakh equity shares of 10 each at a premium of 2 per share. Company received applications for 80,000 shares. मुझे बताओ कंपनी का issued capital कितना है यहाँ पे? What is the issued capital of the company? 6,40,000. Issued 8 कितना लाख है? 8 lakhs 8 lakhs. 8 लाख का तो एप्लीकेशन आया, 10 subscribed है वो, तो 10 lakhs 10 lakhs। तो आपको यहाँ पे अलग अलग दिखाने का है ना, जब आपको फाइनल कैपिटल दिखाना होता है तब यू वुड हैव टेकन 8 लाख ओनली, 80,000 इंटू जो पैसा आया। अलग अलग दिखाने का तो सब कैपिटल दिखाने का, इश्यूड कैपिटल। तो इश्यूड कैपिटल कैसा दिखेगा, तो 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, दैट इज 10 लाख। ये भी डबल अंडरलाइन करो, छोड़ दो, ये भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, टोटल में नहीं दिखेगा। उसके बाद आ जाओ सब्सक्राइब्ड कैपिटल पे, पब्लिक ने कितना सब्सक्राइब किया, 80,000 तो लिख दो सब्सक्राइब्ड कैपिटल 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 8 lakhs। ये भी आपका इंफॉर्मेशन है, ये भी टोटल में नहीं जाएगा। ये सब कंपनी जब बैलेंस शीट बनाती है उसके शेड्यूल में दिखता है, नोट्स में दिखता है। एक्चुअल कैलकुलेशन में पेड अप कैपिटल ही आएगा, जो अब तक के समय हम लोग करते आ रहे थे। तो ये इंफॉर्मेशन है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है ना आपको, ऑथराइज दिखाओ, इशूड दिखाओ, सब्सक्राइब दिखाओ, कॉल्ड अप दिखाओ, पेड अप दिखाओ, से सब दिखा रहे हैं। फिर आते हैं कॉल्ड अप कैपिटल पे। अब पढ़ो क्वेश्चन, पढ़ो ध्यान से पढ़ो। अच्छा, पहले ये तीनों का मीनिंग क्लियर है। व्हाट इज ऑथराइज्ड कैपिटल? अपर लिमिट टुवर्ड्स विच द मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन रेज। व्हाट इज इश्यूड कैपिटल? जो अभी एट प्रेजेंट इश्यू में लाया है, कंपनी ने कितना इश्यू किया? 1 लाख। कैन यू टेल मी व्हाट इज द अनइश्यूड कैपिटल ओवर हियर? 5 lakh 50,000। सब्सक्राइब्ड मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल? पब्लिक ने कितना अप्लाई किया, पब्लिक ने कितना शेयर्स अप्लाई किया? तो 80,000 शेयर्स अप्लाई किया, 8 लाख रुपीज हो गया सब्सक्राइब्ड कैपिटल। व्हाट इज कॉल्ड अप? रिमेंबर व्हाट इज कॉल्ड अप कैपिटल? मंगवाया है जितना कितना मंगवाया है पैसा। अभी कंपनी का शेयर तो था आई थिंक 10 रुपए का शेयर था, उसपे क्या कितना मंगवा लिया है देखो, 3 per share on application and 4 per share on allotment including premium and final call. The company director have not made a final call of 2 rupees. सॉरी 2 रुपया अभी तक नहीं मंगवाया है, तो कितना मंगवाया है कैपिटल की तरफ? 8 रुपया मंगवाया। 10 रुपए का कैपिटल, उसमें से 2 रुपया फाइनल कॉल का बाकी है, तो 8 रुपया मंगवाया। तो इधर लिखने का 80,000 इक्विटी शेयर्स of 10 each, rupees 8 called up, rupees 8 called up, rupees 8 called up. This is called as your called up capital. This is your called up capital. ये इनर कॉलम जाएगा आपका 6,40,000, 6,40,000 रुपीज इन द इनर कॉलम। अब पेड अप भी पूछा है। अभी कॉल्ड अप और पेड अप में क्या फर्क है, याद है आपको? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड अप एंड पेड अप? कंपनी ने मंगवाया तो 6,40,000 है, फाइनल कॉल अभी तक किया नहीं है, मंगवाया है खाली 6,40,000। और पेड अप में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल्ड? जितना हमने रिसीव किया है, जितना हमने रिसीव किया है। तो जो रिसीव नहीं किया उसको क्या बोलते हो? Calls in कॉल्स इन Calls in अरियर्स। arrears। तो उधर क्वेश्चन पढ़ के बता सकते हो व्हाट आर द कॉल इन अरियर? The directors have not made the final call yet. All the money was received except for one shareholder of 500 who did not pay the first call. तो एक शेयर होल्डर है जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा 500 शेयर पे। तो कितना रुपया नहीं भरा होगा फर्स्ट कॉल का? 1,500। वो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज कॉल्स इन अरियर्स। वो हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर देंगे एज कॉल इन अरियर। ये कैसे मिला 1,500? 500 shares into
3 rupees. See what is the breakup over here? Breakup क्या है कंपनी का दिख रहा है ऊपर 10+2 का शेयर है, उसमें ब्रेकअप दिया हुआ है आपको 3 on application, 4 per share including premium, that is basically 2+2, and allot first call पे 3 और final call पे 2 rupees. 2+3 5+4 9+3 12. इसमें कंपनी ने यहां तक ही मंगवाया है पैसा. कॉल्ड अप इज ओनली 8 rupees. उस 8 में भी भाई ने 3 रुपया नहीं भरा है 500 शेयर पे फर्स्ट कॉल का, तो 1500 रुपया कॉल इन अरियर. तो पेड अप कैपिटल कितना हुआ? पेड अप कैपिटल कितना होगा? 6,40,000 में से 1500 नहीं आया ना, मतलब 6,38,500. 6,38,500 दिख रहा है आपको? 6,40,000 minus 1500 of call in arrear, that is 6,38,500, that is paid up capital. जनरली आप सम में ये दिखाते हो, एक्चुअल सम में जो हम करते हैं ना क्रेडिट माइनस डेबिट कैपिटल का, कॉल इन अरियर सब माइनस करके, तो क्रेडिट माइनस डेबिट करके 6,40,000 लेस कॉल इन अरियर 1,500, तो 6,38,500. एक्चुअल सम में इतना ही दिखता है. ऊपर का 3 खाली इंफॉर्मेशन है. क्यों बनाया? क्योंकि वो लोग ने पूछा था, बिकॉज दे हैड आस्क्ड. सर एक बार वापस one second, see, starting with authorized capital. What is authorized capital? अपर लिमिट. अपर लिमिट. उसमें अपना दिमाग लगाना ही नहीं है. क्वेश्चन में दिया है छाप देने का, क्वेश्चन में दिया है कॉपी कर लेने का. 1,50,000 shares of 10 is 15 lakh. Story over. What is issued capital? अभी कितना इश्यू? नहीं, मैक्सिमम नहीं, मैक्सिमम ऑथराइज्ड. अभी कितना इश्यू किया है? अभी कितना इश्यू किया? इस आईपीओ में कितना इश्यू किया? तो क्वेश्चन में देखने का, हाँ 1 lakh शेयर्स ऑफ 10 lakh, वो भी क्वेश्चन में देखने का, कॉपी कर लेने का. डबल अंडरलाइन इसलिए किया क्योंकि वो टोटल का हिस्सा नहीं है. तीसरा है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. व्हाट इज सब्सक्राइब्ड? पब्लिक ने जितना लिया, पब्लिक ने जितना खरीदा. तो याद है 3 सब्सक्रिप्शन होता है, पार, प्रीमियम, पार, ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन. तो इधर अंडर सब्सक्रिप्शन है, तो 80,000 शेयर सब्सक्राइब किया ऑफ 10 each, 8 लाख. वो भी डबल अंडरलाइन करो, छोड़ दो, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. हो गया ये. अभी जाते हैं कॉल्ड अप पे. कॉल्ड अप का मतलब जितना मंगवाया है. कितना मंगवाया है? कितना मंगवाया है कंपनी ने अभी तक? फाइनल कॉल नहीं मंगवाया. देखो ये ब्रेकअप है, 3,4,3,2 का ब्रेकअप है. इसमें फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं आया है. तो कितना मंगवाया है? वैसे तो 3+4+3 है, लेकिन उसमें प्रीमियम भी है ना. वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट कैपिटल. कैपिटल में कैपिटल कितना हुआ है? कैपिटल का वैल्यू कितना हुआ है यहाँ पे? 3+2+3, दैट इज 8 rupees. इज दिस क्लियर? गॉट इट? सो 8 rupees ही आएगा यहाँ पे कॉल्ड अप में. 80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 8 कॉल्ड अप, 6,40,000. और उसमें भी देयर आर कॉल इन अरियर. ये 6,40,000 जो मंगवाया, उसमें भी एक बंदे ने फर्स्ट कॉल नहीं भरा है. फर्स्ट कॉल पे कितना रुपया था अपना? फर्स्ट कॉल पे 3 रुपया था. वो 3 रुपया 500 शेयर्स पे नहीं भरा, तो 1,500 rupees नहीं मिला है अपने को. दैट इज कॉल इन अरियर. तो हाउ विल यू फाइंड आउट पेड अप कैपिटल? अच्छा, सबने सब पैसा भर दिया होता, 640 का 640 सबने भर दिया होता, कुछ कॉल इन अरियर होता ही नहीं, तो पेड अप कितना होता? 6,40,000. 6,40,000. देन कॉल्ड अप वुड हैव बीन पेड अप. इसलिए मैं आपको सम में बोलते रहता हूँ ना, कॉल्ड अप पेड अप एक ही है, कॉल्ड अप पेड अप एक ही है. तो वो ये रीजन है कि अगर सबने सब पैसा भर दिया तो कॉल्ड अप एंड पेड अप आर वन एंड द सेम. बट यहाँ पे अलग है, क्योंकि किसी ने कॉल इन अरियर नहीं भरा है, तो कॉल्ड अप में से 1,500 रुपया माइनस करो, तो यू गेट 6,38,500 एज योर फाइनल पेड अप कैपिटल. जो डिविडेंड होता है ना कंपनी का, वो कौन से कैपिटल पे डिक्लेयर होगा? 15 लाख पे, 10 लाख पे, 8 लाख पे, 6,40,000 पे की 638,500 पे? 638,500. 638,500 paid up capital. Is that clear? 638,500 paid up capital. उसके बाद come to the next step, that is share premium. Share premium भी दिखाने को बोल रहा है. What is share premium? वो रिजर्व है कंपनी का, प्रॉफिट है. प्रीमियम कितना लोगों ने प्रीमियम भरा है? सोचो, किसी ने डिफॉल्ट किया है प्रीमियम में? I don't think so. Everyone has paid the premium. How much is your premium? 2 rupees. On how many shares? कितने शेयर्स पे प्रीमियम आया होगा आपको?
80,000 80,000 शेयर सबने भरा हुआ है, सब्सक्रिप्शन पे प्रीमियम, अलॉटमेंट वाला प्रीमियम सब भरा हुआ है सबने। 1,60,000 प्रीमियम हो गया। एंड फाइनली एसेट में क्या दिखेगा, अभी पूछा नहीं है फिर भी आप बता सकते हो, सामने एसेट में क्या दिखेगा, इधर बैंक। और बैंक में कितना पैसा होगा, कैन यू टेल मी हाउ मच मनी यू विल गेट इन बैंक? 798,500 इसका टोटल 638,500 प्लस 1,60,000 7,98,500 7,98,500। सर ये जो आपने वो दो अंडरलाइन किया उसको मतलब कि वो काउंट नहीं होगा ना? नहीं, वो काउंट ही नहीं होगा, वो ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, वो तो इन्फॉर्मेशन है ना। अपर लिमिट इज इन्फॉर्मेशन, इश्यूड इज इन्फॉर्मेशन, सब्सक्राइब्ड इज आल्सो इन्फॉर्मेशन। अल्टीमेटली कैपिटल क्या है, पेड अप है कंपनी का, कितना पैसा कैपिटल में जनरेट हुआ है, पैसा कितना आया है, एक्चुअल कैपिटल इज ऑलवेज पेड अप कैपिटल, वही ट्रांजैक्शनल वैल्यू है, वही अब तक के सम में जितना दिखा है वो सब पेड अप था, इतना पैसा ही आया ना, जितना पैसा है उतना ही कैपिटल दिखेगा टोटल। और सर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपने जो हर एक कैपिटल के अंदर जो लिखा है कितना शेयर है वो सब लिखना कंपलसरी? नहीं, वो नहीं लिखोगे तो चलेगा। सर हमको ऐसे एग्जाम में सब बनाना पड़ेगा, ऑथोराइज्ड, इश्यूड और वो सब? नहीं, मैं बोला ना ये सब क्वेश्चन में दिया हो तो भी? हाँ नहीं, ये क्वेश्चन में दिया है इसलिए बनाया है। ये क्वेश्चन में देखो ना, they have asked us to show authorized, issued, subscribed, called up, paid up, call in arrear and share premium. That's why we are showing all these capital. सर बैलेंस शीट कितने मार्क्स का आएगा? नॉर्मल कैपिटल, सॉरी बैलेंस शीट कितने मार्क्स का आएगा? बैलेंस शीट आने का चांस नहीं है, 99% चांस नहीं है। 1% आया तो सादा एक्सट्रैक्ट ऊपर वाला, ये वाले का चांस नहीं। तो कितना मार्क रहता है? एक्सट्रैक्ट का 2 मार्क, आउट ऑफ 8 मार्क 1 मार्क और 2 मार्क, 1 मार्क और 2 मार्क फॉर एक्सट्रैक्ट, 8 मार्क के प्रॉब्लम। जर्नल के साथ पूछ सकते हैं? जर्नल ही रहता है, मेन जर्नल ही रहता है, शेयर्स में जर्नल एंट्रीज ही रहेगा। एक्सट्रैक्ट आने का चांस कम है, अगर आया तो 1 और 2 मार्क का एक्सट्रैक्ट, और वो भी ये नहीं ऊपर वाला जो हमने किया ना, बस ये खाली एक प्रैक्टिस के लिए करवाया है, एक बार गो थ्रू किया रहेगा तो सेफ साइड के लिए, और कुछ नहीं। ओके सर लास्ट एक्सट्रैक्ट, यस सर, इश्यूड कैपिटल में शेयर प्रीमियम ऐड करके नहीं बता सकते? नहीं, प्रीमियम सेपरेट परमानेंट रिजर्व है, खाली शेयर फॉर फीचर ऐड कर सकते हो, टेम्पररी रिजर्व, वो भी अलग से दिखाया तो चलेगा। शेयर प्रीमियम भी अलग, शेयर प्रीमियम तो अलग से ही दिखाना है, कैपिटल रिजर्व अलग से ही दिखाना है, शेयर फॉर फीचर भी अलग से दिखाया तो चलेगा। कोई रिजर्व ऐड नहीं हुआ, याद नहीं आ रहा है, ऐड करना है नहीं करना है, सेपरेटली दिखा दो, खाली एक शेयर फॉर फीचर ऐड कर सकते हो और कुछ नहीं। ओके, टेम्पररी रिजर्व है इसके लिए। इज इट क्लियर नाउ? लास्ट वन, इलस्ट्रेशन के एक्सट्रैक्ट आप लोग देख लेना, इलस्ट्रेशन के एक्सट्रैक्ट 2-3 है, उसका बनाया हुआ है बैलेंस शीट में, दैट यू कैन गो थ्रू एट होम। लेट्स फटाफट पहले डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स, देन एक और एक्सट्रैक्ट अपन असाइनमेंट शीट का ले लेते हैं। तो मैं पहले ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम लोग असाइनमेंट शीट का एक एक्सट्रैक्ट ले लेंगे। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ शेयर्स, इधर से ही देख के आंसर करते जाओ। The balance of share forfeiture account is transferred to dash account after reissue of the share. Capital. Balance of share forfeiture is transferred to capital reserve. All of you got that? Hello? Hello? All of you try to answer. Premium received on issue of share is shown सर to एक मिनट dash. रुको ना इधर देखो ना स्क्रीन पे, सर, हम बुक निकाल, क्या जरूरत है, इधर से आंसर करो। Premium received on issue of shares is shown on liability side of balance sheet. अभी अभी बनाया एक्सट्रैक्ट, शेयर प्रीमियम, इंटरनल लायबिलिटी, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। Shareholders get dash on shares. Dividend. The document inviting the
to subscribe the shares to the company is called? Memorandum of association. Prospectus. Prospectus. Red herring prospectus. Invitation. आईपीओ के वक्त बता रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सब जगह एडवर्टाइजमेंट करके इलेक्शन मैनिफेस्टो जैसा रहता है, कंपनी का प्रॉफिट पास्ट हिस्ट्री सब दिया रहता है, दैट इज प्रोस्पेक्टस. इनवाइटिंग टू सब्सक्राइब द शेयर्स, हमारा शेयर्स खरीदो खरीदो खरीदो. ऑल द ग्लॉसी पॉइंट्स ऑफ द कंपनी दे आर गिवन इन प्रोस्पेक्टस. रेड हेरिंग सर जो शेयर सर्टिफिकेट रहता है वो मैंने खरीद लिया, उसके बाद कंपनी देती है ना मेरे को? वो सब है ना, पहले होता था शेयर सर्टिफिकेट, वो देती थी कंपनी. यस, कंपनी इशू. अभी तो सब डीमैट अकाउंट में, अभी तो सब डीमैट है, सीधा ऑनलाइन हो जाता है. शेयर सर्टिफिकेट्स है ही नहीं कुछ, बहुत कितना मोर देन 15-20 years हो गया. As per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be dash the nominal value of shares. This is actually wrong. 2%. नहीं, this is wrong. ये question wrong है. इसका आंसर है 25%. Okay, इसका आंसर है 25%. As per SEBI guidelines, minimum amount payable on share application should be 25% of the nominal value of shares. अगर यहाँ पे क्वेश्चन बराबर फ्रेम नहीं किया है, ये SEBI के जगह कंपनीज एक्ट होता ना, इधर लिख देता हूं. As per कंपनीज एक्ट it is 5%. As per कंपनीज एक्ट it is 5%. तो अगर कंपनीज एक्ट है तो 5%, अगर SEBI का गाइडलाइन है तो 25%. Okay, 25%. The amount of application money as a percentage of nominal value of shares. तो SEBI के गाइडलाइन के हिसाब से मिनिमम 25% होना चाहिए, कंपनीज एक्ट के हिसाब से मिनिमम 5% होना चाहिए. तो as per कंपनीज एक्ट it is 5%, as per SEBI guideline it is 25%. Remember that. When shares are forfeited, the share capital account is debited. Liability of shareholder in a joint stock company is limited. The share capital which a company is authorized to issue by its memorandum of association is called nominal or authorized. The share capital with the company is authorized as per memorandum. Memorandum बताया था ना, जो आउटसाइड वाले को काम का डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. उसमें कंपनी को ऑथराइज मतलब मैक्सिमम लिमिट जितना वो ऑथराइज्ड है कर सकती है इश्यू. अपर लिमिट क्या है? ऑथराइज्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल. उसको 3 नाम है, नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल. नॉमिनल, रजिस्टर्ड एंड ऑथराइज्ड आर ऑल वन एंड द सेम. अपर लिमिट जितना वो इश्यू कर सकती है. Unpaid amount on allotment and calls may be transferred on calls in arrears account. There must be a provision in the dash for forfeiture of shares. Articles. Internal rules and regulations. Internal rule में कंपनी दिखा के चाहिए, उसमें आर्टिकल में सब दिया रहता है, कब फोरफिट करना है, कि मिड में करना है, एंड में करना है कि नहीं करना है, ये सब कितने टाइम बाद करना है, ये सब डिटेल तुम्हारा इंटरनल रूल्स में दिया रहता है, आर्टिकल्स. ओके. तो सर मेमोरेंडम में क्या दिया रहता है? मेमोरेंडम में आउटसाइड फंक्शनिंग का डेटा जो होता है ना, बाहर वालों को काम का, कि बिजनेस का कौन कौन डायरेक्टर्स हैं, नेम्स ऑफ द डायरेक्टर्स, उनका रेसिडेंशियल एड्रेसेस, उनका लाइन ऑफ बिजनेस, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस, कितने सालों से है कंपनी एस्टैब्लिश्ड, कैपिटल क्लॉज में ऑथराइज कैपिटल, कितना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकती है, कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, ये सब डिटेल जो होती है एक्सटर्नल यूजेज के लिए, मतलब पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट के लिए, शेयर इन्वेस्टर के लिए जो काम का डिटेल है, वो मेमोरेंडम में होता है. आर्टिकल में इंटरनल कामकाज का डिटेल होता है, इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस. ओके, दैट इज गिवन इन आर्टिकल्स. सो that was articles for your all the internal provisions, rules and regulations. Okay, give one word or phrase. Amount called up on shares by the company but not received. Called up capital. Calls in arrear. Called up but not received. Call in arrear. Issue of share at its face value. Issue at par. Issue at par. Person who purchases the shares of the company. Shareholder. Form of business organization where huge amount of capital can be raised. IPO. Form of business organization.
सर पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आ सकती है। हाँ, जॉइंट स्टॉक कंपनी। पब्लिक लिमिटेड लिख सकते हो, बट बेटर आंसर जॉइंट स्टॉक, उसको कॉमन नेम इज जॉइंट स्टॉक कंपनी, कंपनी या जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक है, सब्सक्राइब Subscribe capital. सब्सक्राइब बाय द पब्लिक इज सब्सक्राइब। इश्यू तुमने 1 लाख किया, पब्लिक ने 80,000 सब्सक्राइब किया, तो सब्सक्राइब 80,000 ही होगा ना, 80,000 सब्सक्राइब कैपिटल। शेयर्स हैविंग प्रेफरेंशियल राइट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, Preference share. तो दोनों में प्रेफरेंस रहता है, डिविडेंड में भी प्रेफरेंस रहता है, लिक्विडेशन में भी प्रेफरेंस रहता है, पहला पैसा इसको ही जाएगा। द शेयर्स ऑन विच डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, Equity. equity shares. The part of subscribed capital, पढ़ना ध्यान से, the part of subscribed capital which is not called up by the company, part of subscribed capital जो अभी तक मंगवाया नहीं है, उसको क्या बोलो? Uncalled capital. This is called uncalled capital. Uncalled capital. ओके, सब्सक्राइब कैपिटल है 80,000, अभी देखा ना हमने, उसमें से 8 रुपया मंगवाया, 2 रुपया नहीं मंगवाया, 2 रुपया इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल, और 8 रुपया जो मंगवाया दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। जैसे कि अपर लिमिट 1.5 लाख थी, तो 1 लाख इश्यू किया तो 1 लाख इश्यूड कैपिटल, 50,000 अनइश्यूड कैपिटल, समझा? 1 लाख इक्विटी शेयर्स में से 80,000 सब्सक्राइब हुआ, तो 80,000 सब्सक्राइब कैपिटल, 20,000 अनसब्सक्राइब कैपिटल, और 80,000 में से 8 रुपया मंगवाया, वो कॉल्ड अप कैपिटल, 2 रुपया नहीं मंगा, वो अनकॉल्ड कैपिटल, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, ट्रू और फॉल्स विथ रीजंस, डायरेक्टर्स कैन forfeit the shares for any reason. False. Why do they forfeit the share? Non-payment of call. Non-payment of call money, yeah, allotment money. Once the application money is received, directors can immediately proceed for allotment of shares. False. False. वो पहले क्या करेगा, कुछ ओवर सब्सक्रिप्शन है कि नहीं, कुछ रिफंड करना है कि नहीं, रिफंड करेगा, एक्सेस अलॉटमेंट में एडजस्ट करेगा, फिर जाएगा अलॉटमेंट मांगने के लिए। इज दैट क्लियर? सो डायरेक्टली नहीं कर सकता है, पहले एक्सेस एडजस्ट करने के बाद, एक्सेस एडजस्ट करने के बाद, आफ्टर एडजस्टिंग द एक्सेस। Joint stock company form of organization came into existence after industrial revolution. True. फर्स्ट लेक्चर बताया था, याद है आपको? उससे पहले जरूरत नहीं था, फिर क्यों जरूरत पड़ा कंपनी का? मशीनरी और वो सब खरीदने के लिए कैपिटल बढ़ाने, पैसा, कैपिटल, मशीनरी सब कॉस्टली था, मैकेनाइज्ड प्रोडक्शन आ गया, इसलिए पैसे जरूरत पड़ने लगे, इसलिए कंपनी आ गई। इक्विटी शेयर होल्डर गेट गारंटीड रेट ऑफ डिविडेंड एवरी ईयर। False. False. प्रेफरेंस को भी गारंटीड नहीं रहता है, रेट ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, गारंटीड नहीं है। कंपनी प्रॉफिट्स करेगा तो ही डिविडेंड देगा, ओके? लॉसेस में प्रेफरेंस भी बेचारा कंगाल है, उसको भी कुछ नहीं मिलेगा। फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज ऑलवेज सेम। False. False. Sweat equity shares are issued to the public. False. False. याद है स्वेट इक्विटी बताया था? Employees. एम्प्लॉय एंड डायरेक्टर्स टेक्निकल नो हाउ, सम एक्सपर्ट नॉलेज इफ दे शेयरिंग, तो उसको देता है स्वेट इक्विटी। State whether you agree or disagree. In case of pro rata allotment, the excess on application money received must be refunded. Disagree. क्या होता है in that case? Allotment में transfer. Allotment में excess transfer हो जाता है, right? Refund कब होता है? प्रो रेटा में रिफंड होता है कि रिजेक्शन में रिफंड होता है? Rejection. रिजेक्शन में रिफंड होता है। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट इज शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। False. कॉल्स, कॉल इन एडवांस मतलब क्या हो जाएगा कंपनी का? Liability. लायबिलिटी। कॉल इन अरियर इज एसेट, मिलना बाकी है, एडवांस इज लायबिलिटी, एडवांस में आ गया देना बाकी है। ऑथराइज्ड कैपिटल इज आल्सो नोन एज नॉमिनल कैपिटल। Agree. अग्री, बराबर है। पेड अप कैपिटल कैन बी मोर देन कॉल्ड अप कैपिटल। False. डिसएग्री। Disagree. जो ये पांचों कैपिटल एक दूसरे से इक्वल या कम हो सकते हैं, पांचों। ऑथराइज्ड से बड़ा कुछ नहीं। इश्यूड कैन बी इक्वल टू और लेस देन ऑथराइज्ड। सब्सक्राइब्ड कैन बी इक्वल टू और लेस देन इश्यूड। तुम्हारा ओवर सब्सक्रिप्शन में भी मैक्सिमम इश्यूड ही गिनाया जाएगा सब्सक्राइब में।
Subscribed can be equal to issued or less than issued. Called up can be equal to subscribed or less than subscribed. Paid up can be equal to called up or less than called up. Okay? ये पांचों कैपिटल डिसेंडिंग ऑर्डर में जाते हैं, कोई किसी से बड़ा नहीं हो सकता है. ऑथराइज सबसे बड़ा, उसके नीचे इश्यूड, फिर सब्सक्राइब्ड, फिर कॉल्ड अप, फिर पेड अप. The joint stock company can raise huge amount of capital. Agree. When shares are forfeited, share capital account is credited. Agree. Yeah. So debited. Debited. So disagree. Forfeiture entry में share capital account debit होता है, right? Share capital debit to call in arrear to share forfeiture. Directors can reissue the forfeited shares. Agree. When the issue price of a share is 12 and the face value is 10, the share are said to be issued at a premium. Agree. Public limited company can issue its shares without issuing its prospectus. Disagree. Public limited को issue IPO issue करने से पहले prospectus है ना, वो red herring prospectus, manifesto, उसी के basis पे good points, सब brownie points दिया रहेगा कंपनी का, उसके basis पे shareholder आएगा. Shares can be issued for consideration other than cash. Agree. याद आ रहा है वो सम्स किया था हमने, मैनचेस्टर चेल्सी वाला एसेट खरीद के लाया. Okay. What is preference share? What is preference share? Shareholder can receive the dividend. Shares with fixed rate of dividend, ये लिख सकते हो, या preferential right. Shares with preferential right. Preferential right का मतलब जिन शेयर्स पे डिविडेंड पहले मिलता है, प्रेफरेंस इक्विटी से पहले मिलता है, या लिक्विडेशन में पैसा पहले मिलता है. शेयर्स विथ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड या प्रेफरेंशियल राइट्स. व्हाट इज रजिस्टर्ड कैपिटल? अपर लिमिट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल बियॉन्ड विच द कंपनी कैन नॉट रेज द मनी एट प्रेजेंट. What is reserve capital? Now there is a difference between reserve capital and capital reserve. याद है किसी को? Reserve capital and capital reserve. देखो सुनो ध्यान से. What is capital reserve? All of you know that. That's a profit of the company. Capital reserve पता है सबको, जिसमें share forfeiture का पैसा ट्रांसफर करते हो आप. अब सुनो reserve capital. Very important question, likely to come in objectives. Reserve capital का मतलब है uncalled capital on shares that will be called up at the time of liquidation. Reserve capital का meaning है it is the uncalled capital on shares, which will be called up at the time of liquidation. मतलब फॉर एग्जाम्पल कंपनी का 1 लाख शेयर है, उस पे 10 रुपए का शेयर है, 8 रुपया मंगवाया है, तो 8 लाख कॉल्ड अप कैपिटल हो गया, उसका 2 लाख रुपया आना बाकी है. वो 2 लाख रुपया अभी मंगवाएगा ही नहीं, वो रख देगा, बोलेगा अगर लिक्विडेशन में जरूरत पड़ा पैसा देने का कोई लायबिलिटी को तो हम पैसा मंगवाएंगे शेयर होल्डर से, वरना नहीं मंगवाएंगे. सो ये 2 लाख वो परमानेंटली 8 कॉल्ड अप ही देगा शेयर, उसका कंपनी को और पैसे की जरूरत नहीं है तो उसको रिजर्व कैपिटल बना देगा. रिजर्व कैपिटल का मतलब अनकॉल्ड कैपिटल. अनकॉल्ड का मतलब समझा आपको? अनकॉल्ड मतलब अभी तक मंगवाया नहीं है, और वो अभी भी नहीं, कभी भी नहीं. कभी मंगवाएगा जब कंपनी बंद होने वाली होगी तब, और वो भी जरूरत पड़ी तो ही, टू पे ऑफ द एक्सटर्नल लायबिलिटी. So it is an uncalled capital which might be called up at the time of liquidation. Okay, which is called up at the time of liquidation in case of need. Is this clear? That is called as reserve capital. उतना पैसा रिजर्व में रखा हुआ है, जब फ्यूचर में चाहिए तब मंगवाओगे, जरूरत पड़ा तो. तो डिफरेंस क्लियर है? कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल. ये ट्रू और फॉल्स में भी आता है. कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल आर वन एंड द सेम. Is it true? No. Capital reserve is a profit, capital profit of the company, whereas reserve capital is the uncalled capital on share which will be called up at the time of liquidation in case of need to pay off the external liability. Okay? तो सर वो बिजनेस के लिए एसेट हो जाएगा ना? नहीं, वो मंगवाया नहीं है. ऐसा नहीं है कि मंगवाया और मिलना बाकी है, वो कॉल इन अरियर है. ये मंगवाया ही नहीं है तुमने,
तुम्हारा कैपिटल इधर में बोला ना, बैलेंस शीट में कैपिटल 8 लाख और पैसा 8 लाख, बैंक 8 लाख, कैपिटल 8 लाख, वैसा ही दिखेगा टिल द लिक्विडेशन प्रोसेस। फिर जब मंगवाओगे तभी वो 10 लाख हो जाएगा, बैंक 10 लाख और ये कैपिटल जो भी है 10 लाख। गॉट इट? सो वो रिसीवेबल भी नहीं है, कॉल इन अरियर इज रिसीवेबल, मंगवाया ही नहीं है, यू विल कॉल्ड अप एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, यू विल आस्क फॉर दैट मनी ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। व्हाट इज ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स? More than issued capital. When people subscribe for, when application money is received for more shares than issued shares, when applications, yeah, more applications are received than issued shares, when applications applied shares are more than issued shares. When applied shares are more than applied shares are more than issued shares, when application money received is more than issued capital, barabar? When application is more than issued capital. Which account is debited when share first call money is received? Received. Bank. Bank to share first call. When are shares allotted on pro rata basis? Oversubscription. At the time of oversubscription, what is forfeiture of shares? Cancelling the ownership. Cancelling the ownership of shares. Perfect. What is call in arrear? Fail attempt of payment. Money called but not received. Money called but not received. Amount called but not received. Amount called but not Sir, received. इसमें हम लोग वो फॉर्मूला डाल सकते हैं called up minus paid up वाला। डेफिनेशन में मत डालो, डेफिनेशन में इट इज मनी कॉल्ड बट नॉट रिसीव्ड, अमाउंट कॉल्ड अपॉन शेयर्स बट नॉट रिसीव्ड, दैट इज कॉल इन अरियर। ओके, वो एक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट, अगर कोई कैपिटल मिसिंग है तो वहां से ढूंढ सकते हो आप। व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स इशूड एट प्रीमियम? Issue price is more than face value. Issue price is more than face value. Issue price is more than face value. What is paid up capital? यहाँ पे आप दिखा सकते हो, यहाँ पे you can use that formula. What is paid up capital? It is called up capital less calls in arrears. Okay, called up capital less calls in arrears. Amount actually paid by the shareholders. Amount actually paid by the shareholder. It is called up capital less calls in arrears. That is paid up capital. When the face value of share is 100 and the issue price is 120, then it is said that the shares are issued at Premium. Dash capital, the capital the company is authorized to issue by memorandum of association. Nominal बोलो या फिर authorized बोलो या फिर registered बोलो. The difference between called up capital and paid up capital is known as Call in arrear. Dash shareholder get a fixed rate of dividend. Preference. Dash shareholder real owners of the company. Equity. Voting rights equity कोई रहता है. Dash form of business organization in which capital is raised through issue of shares. Joint stock company या company. Dash capital is a part of issued capital which is subscribed by the public. Subscribed capital. The part of authorized capital which is not issued to the public. Part of authorized which is not issued to the public. Unauthorized. The part of authorized capital which is not issued. Unauthorized ऐसा कुछ नहीं है, unauthorized ऐसा होता ही। Unissued. सर uncalled हो सकता है? Uncalled नहीं होगा। Uncalled का मतलब क्या है? देखो, once again I'll repeat. हमारा एग्जाम्पल में ही देख लो. I'll just share that part जो हमने अभी अभी एक्सट्रैक्ट बनाया. ये देखो, इसमें 1.5 लाख शेयर्स है ना, ये ऑथराइज्ड है. इसमें से 1 लाख आपने इश्यू किया हुआ है, तो अनइश्यूड कितना हुआ? 50,000. 50,000 शेयर्स आर कॉल्ड अनइश्यूड कैपिटल. ठीक है. देन 1 लाख इश्यू करने के बाद 80,000 सब्सक्राइब हुआ, तो 20,000 क्या हुआ? अनसब्सक्राइब्ड. 80,000 सब्सक्राइब किया तो 20,000 इज अनसब्सक्राइब.
ओके 50,000 अनइश्यूड, 20,000 अनसब्सक्राइब। फिर 80,000 में से आपने कितना रुपया मांगा है अभी तक? 8 रुपीज। तो 2 रुपया नहीं मांगा है, 8 रुपीज जो मांगा है दैट इज कॉल्ड अप। 2 रुपया जो नहीं मांगा है दैट इज अनकॉल्ड, दैट इज कॉल्ड अनकॉल्ड। इज दैट क्लियर? सो अनइश्यूड, अनसब्सक्राइब्ड, अनकॉल्ड, तीनों का मीनिंग क्लियर? अनइश्यूड मतलब ऑथोराइज का पार्ट जो इश्यू नहीं किया है, अनसब्सक्राइब मतलब पब्लिक ने जो नहीं खरीदा है, और अनकॉल्ड मतलब हमने जो अभी तक नहीं मांगा है, दैट इज ऑल अनकॉल्ड कैपिटल। इज क्लियर? तो यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा था अपने को? यहां पे अपने को पूछा गया था कि पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, ऑथोराइज का हिस्सा है, विच इज नॉट इश्यूड बाय टू द पब्लिक इज नोन एज अनइश्यूड। अभी तक अनइश्यूड है, फ्यूचर में एफपीओ में इश्यू कर सकते हो। अभी चलो कैलकुलेट करो ये फटाफट सब लोग खुद से, ऑल ऑफ यू कैलकुलेट दिस ऑन योर ओन फटाफट। 1 2 3 4 5 6 उधर ही नोटबुक में आंसर लिख दो वर्किंग करके, खुद से दिमाग लगाओ। 1 2 3 4 5 6 कैलकुलेट ऑन योर ओन, क्विक क्विक क्विक। सर सर फर्स्ट सेम में 3,500 है ना, अलॉटमेंट और एप्लीकेशन दोनों भरा। फर्स्ट इज शेयर्स, हाँ सर अच्छा 3,500 आएगा। 3,000 बराबर, 5 into 7 3,000। खुद से जमना चाहिए। हाँ छापा तो खत्म, બધું બાઉન્સર છે, પત્તા નહીં મળે આવું જોઈએ। सर रिग्रेट लेटर मतलब क्या? भरा नहीं है। रिजेक्शन, 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 रिग्रेट इज रिजेक्शन, रिफंड। सर वो थर्ड वाला एक बार समझो। कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000 शेयर्स एट 4 per share। एप्लीकेशन पे 4 रुपया मांगा था, 5,000 शेयर्स ने एक्स्ट्रा भरा, एक्सेस है वो 5,000। 5,000 में से एप्लीकेशन ऑफ 1,000 वेर रिजेक्टेड एंड बाकी का प्रो रेटा किया है, मतलब 4,000 को प्रो रेटा अलॉट किया और 1,000 को ये किया। अच्छा हाँ ये 16,000 आएगा, सॉरी 12 नहीं है, 4 into 4 16 आएगा। 5,000 शेयर पे एक्सेस पैसा आया था, उसमें से 1,000 शेयर को रिजेक्ट किया, मतलब वो लोग का 1,000 into 4 4,000 रिफंड कर दिया, और 4,000 को प्रो रेटा मतलब उनका अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। तो प्रो रेटा वाला ही अलॉटमेंट में जाएगा ना एक्सेस, जो रिजेक्ट वाला है वो तो रिफंड हो जाएगा ना 4,000 रुपया, 1,000 into 4, समझा? तो ये 4,000 शेयर का एक्स्ट्रा पैसा है जो 4 रुपए का, वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर होगा। तो 4,000 into 4 16,000। चेक कर लो। सर वो जो लास्ट में अलॉटमेंट लेटर है उसका मतलब क्या हुआ? प्रो रेटा कर दिया। अलॉटमेंट लेटर मतलब प्रो रेटा या फुल अलॉटमेंट, उनको अलॉट हुआ है।
रिग्रेट मतलब रिजेक्शन। सर फोर्थ सम में वो लोग ने इक्विटी शेयर कैपिटल बोला, मतलब इश्यूड कैपिटल। इश्यूड, कॉल्ड अप, पेड अप सब एक ही है, कुछ नहीं दिया तो अज्यूम करने का ना सब पैसा आ गया। मतलब उसमें वो शेयर प्रीमियम काउंट नहीं होगा। हाँ, कैपिटल में प्रीमियम कैसा? प्रीमियम तो रिजर्व है सेपरेट। बराबर। सर सेकंड में टोटल कैपिटल तो 11,000 रहेगा ना? नहीं, टोटल कैपिटल प्लस प्रीमियम इज 1,10,000। हाँ तो सर फिर उसमें शेयर कैपिटल 10 और फिर प्रीमियम 1,000 वैसा आएगा ना? शेयर कैपिटल 1 लाख और प्रीमियम 10,000। हाँ वही तो पूछा आपने को, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ प्रीमियम। कैपिटल में 1 लाख आएगा और प्रीमियम में 10,000 आएगा। तो अपने को खाली प्रीमियम पूछा है ना, तो प्रीमियम विल बी 10,000। सर फोर्थ में प्रीमियम कितना आएगा? 20%, 80,000, 8 लाख का 20%, 1,60,000। दो फेस वैल्यू है ना, 10 रुपए फेस वैल्यू का ही 20% है, 2 रुपया, 2 रुपया पर शेयर इस प्रीमियम। लेकिन फोर्थ वाले में अपने को प्रीमियम नहीं पूछा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल पूछा है, तो खाली कैपिटल का वैल्यू। सर जाए अभी? एक लास्ट समय असाइनमेंट का 5 मिनट। अरे सर छोड़ो ना अभी। सर पहली बार 9:15 को पता है पूरा। सर होमवर्क दे दो, होमवर्क दे दो ना वो। सर बहुत ही मैन है। 1 मिनट। हाय सर। hey, सम नंबर कहाँ गया? सम नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ असाइनमेंट। एक ही क्वेश्चन 9 ऑफ असाइनमेंट शीट। खुद से ट्राई करो, एक्सट्रैक्ट खत्म करो, फिर फिनिश। क्वेश्चन नंबर 9 ये मिला पहले अमाउंट से मिला 6 का 6। एनी डाउट एनीवन? हाउ टू कैलकुलेट? डिड यू अंडरस्टैंड दीज 6 अमाउंट्स? एनीवन वाज नॉट? 16,000 वाला बोलो तो। हाँ, 16,000 वाले में देखो क्या दिया, कंपनी रिसीव्ड एक्सेस एप्लीकेशन फॉर 5,000। एक्सेस एप्लीकेशन का मतलब 5,000 4 रुपया पर शेयर। मतलब समझो कंपनी का शेयर 10 रुपए का और ब्रेकअप है 442, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल। और कंपनी ने 20,000 शेयर का इश्यू किया है और उसको एप्लीकेशन आया है 25,000 शेयर्स का। इसको बोलते हैं 5,000 एक्सेस एप्लीकेशन। तो कंपनी ने उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, ए और बी। जिन्होंने 1,000 शेयर्स अप्लाई किया था उसको रिजेक्ट कर दिया, नील अलॉटमेंट। और जिन्होंने बाकी 24,000 है उसको प्रो रेटा किया। इसका मतलब ये हुआ, ये स्टेटमेंट का मतलब कि एक्सेस 5,000 एप्लीकेशन आया था, उस 5,000 में से 1,000 को रिजेक्ट किया और 4,000 को प्रो रेटा में डाला। तो रिफंड अमाउंट क्या होगा आपका? 1,000 इंटू 4 होगा, 4,000। और प्रो रेटा में कितना डालोगे? ये 4,000 पे डालोगे ना, 4 रुपया, 16,000। ये प्रो रेटा में चला जाएगा। सिंपल, दैट इज व्हाट दे हैव आस्क्ड। सर जो फोर्थ है उसमें प्रीमियम पे इश्यू किया ना उन लोगों ने। प्रीमियम पे इश्यू किया, लेकिन अपने को कैपिटल पूछा है, खाली कैपिटल वैल्यू, नॉट प्रीमियम। टोटल मनी पूछा होता, टोटल मनी रिसीव्ड होता तो इट वुड हैव बीन 80,000 into 12, 9,60,000। टोटल मनी नहीं पूछा है, खाली शेयर कैपिटल पूछा है, 8 लाख। ये हो गया है तो जर्नल असाइनमेंट शीट 9th प्रॉब्लम। लास्ट लेक्चर, लास्ट सम कंप्लीट। सीधा रिवीजन में उठाएंगे इसको। तो मतलब फ्राइडे से छुट्टी नहीं।
फ्राइडे से रिवीजन स्टार्ट हो रहा है. बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर आई स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे. प्लीज रिवाइज एंड कम. And no video recording. Okay, all lectures are compulsory to attend from Friday. वो तो एक लेक्चर में हो जाएगा ना, 5 समता है. एक लेक्चर में तो नहीं होगा वो. 5 into ऐसा है वो. ड्रॉ ही दोनों का. टेक टाइम. 2 to 3 lectures it will take one chapter. सर पर वो ऑप्शन में है ना. ऑप्शन ऑफ डिसोल्यूशन. ऐसा तो सब चैप्टर ऑप्शन में है ना. एक एक अपने को तो सभी करने का ही है. ऑप्शन करने का ही. 9th सम ऑफ असाइनमेंट शीट. असाइनमेंट शीट का 9th प्रॉब्लम. लास्ट बैलेंस शीट. ये हुआ मिला. 1 2 3 4 5 6. एनी डाउट एनीवन? होमवर्क के लिए कौन सा सम बोला? होमवर्क के लिए मैंने बोला ही नहीं. खाली आज कुछ होमवर्क दिया क्या मैंने? आज कुछ होमवर्क नहीं. आज खाली वो इलस्ट्रेशन में से बैलेंस शीट देखने को बोला है मैंने. स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन में 2-3 एक्सट्रैक्ट है. वो खाली बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट देख लेना. वो थ्रू कर लेना. नहीं समझ में आया तो पूछ. बाकी कुछ होमवर्क नहीं है ना. सब तो हो गया. अभी बाकी क्या है? करो चलो. लास्ट 9th सम असाइनमेंट शीट. इसमें पहले आएगा क्या तुम्हारा बैलेंस शीट में? एक तो शेयर कैपिटल आएगा डेफिनेटली. कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम. कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम भी आएगा डेफिनेटली. सर शेयर फॉर फीचर भी आएगा. शेयर फॉर फीचर भी आएगा. क्यों? सर क्योंकि सब शेयर है. हाँ शाबाश. तो दिमाग चलना चाहिए. कॉल इन अरियर आएगा क्या? कॉल इन अरियर नहीं सर. कॉल इन अरियर नहीं आएगा. 30,000 में से 1500 गया. 250 माइनस 29,715 टू 10 टू 975,000. 2975,000 is your share capital plus share for feature. Share for feature will be left only on 250 shares, including whole of Ram, Laksham ka 250 call money, 3 on application plus 3 on allotment, 6 rupees on 250, 297, 298, 299,000. कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा आपका? 3,500. प्रीमियम 59,000. 1,000 कम है ना. राम का 59,000 परफेक्ट. और बैंक में टोटल आ जाएगा आपका 299, 360, 358, 361, 500 should be in bank. 361500. Please check your extract. सर वो शेयर फॉर फीचर में कैसे कैलकुलेट किया? क्रेडिट माइनस डेबिट सब वही है. क्रेडिट माइनस डेबिट. 250 शेयर्स का बाकी था ना. लॉजिकली सोचोगे तो ऐसा सोचने का.
1500 शेयर कैंसिल किया, उसमें से 1250 रीइश्यू किया है, तो 250 बचा है। 250 किसका है? राम का कि श्याम का? तो श्याम का। श्याम ने क्या भरा था? एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 3 रुपए और 3 रुपए, 6 रुपए इंटू 250, 1500। That is share forfeiture. बस हाँ सर, अभी जा सकते हैं ना। संपला, कंपल्सरी पोर्शन संपला। फ्राइडे रिवीजन लेक्चर, सेकंड बर्थ ऑफ अकाउंट्स, डोंट रिमेन एब्सेंट फॉर इवन अ सिंगल रिवीजन लेक्चर। ओके, मैराथन विल स्टार्ट फ्रॉम फ्राइडे। डाउट्स है तो रुको, अदरवाइज यू कैन लीव। टाटा बाय। क्लास ड्यूरेशन कम करने वाला हो या इसमें? क्या क्लास ड्यूरेशन कम करने वाला हो? लास्ट क्लास ड्यूरेशन कम करने वाला हो? क्लास ड्यूरेशन हाँ। क्यों कम करना है? 2-2 घंटा आने का ही है। डेट मतलब 1.5 an hour। हाँ, 9:15 क्यों 9? वो तो कभी सर आज भी हाँ, 9:15 सर हो आपका गया। 9:15 मतलब पता है। सर 9:15 को छोड़ते नहीं हो। देखो, बोर्ड का डेट के ऊपर है। अगर बोर्ड पोस्टपोन होता है ना, तो अपने पास प्लेग्राउंड है। वील एक्सटेंड इट टिल जनवरी, आराम से करेंगे। सर क्या But if- एक्सटेंड क्यों करना? छुट्टी दे दो ना। हाँ, तो फिर छुट्टी भी मिलेगा और सर लेक्चर दिवाली का देने वाले हो ना? दिवाली का हफ्ता भर मिलेगा। 1 week you will get। सर हफ्ते में आपका लेक्चर ही 3 आता है, उसमें क्या छुट्टी? वही We और